Hi guys, thank you so much for watching my channel, The Witty Turtle, and today we are gonna learn what are the kinds of interest that is being the SSC has to pay on his advance tax. So basically, there are three sections: Section 234A, B, and C. These three sections we are going to study today. So under Section 234A, it says you have to pay interest on your advance tax if you have filed your return after the due date. Interest for late filing of return. This section is for interest for late filing of return. Next is section 234B. This says interest for non-payment of advance tax. So this means if you have paid less than 90% of your advance tax payable, in that case, how much interest will be chargeable to you? That has been mentioned in this section. Next is section 234C. According to this section, interest for delayed payment of installments. What is delayed payment of installments? So लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ड्यू डेट क्या क्या होता है. If you have paid after 15th June is the due date. So if you have paid after 15th June, in that case, how much interest will be chargeable to you? That is being mentioned in this section. So ये सब क्या है, ये हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा. So ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है. ओके, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम क्या है आपका? ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है आपका 31 जुलाई 2022. हमने ये बिना ऑडिट वालों का लिया है, ठीक है. सो टैक्स पेएबल कितना है आपका? क्वेश्चन में दिया है टैक्स पेएबल इज 25,000, आउट ऑफ विच टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड, टीडीएस ऑफ रुपीज 5,000. सो फाइनली एडवांस टैक्स पेएबल will be how much? 20,000 rupees. You have to pay a total advance tax of 20,000 rupees. And in the question further, it has said that tax payment matlab advance tax has been paid on 15th June 2021. How much? 10,000. And 31st March 2022, the rest 10,000. And the return of income has been submitted on 15th July 2022. Interest will be payable under which sections? So हम लोग एक एक करके चेक करेंगे, ठीक है. We'll check one by one. First section is for late filing of return. So in this case, when have you filed your return? 15th July 2022, which is before 31st July. So obviously, no interest will be chargeable to you under section 234A. That is, your return of income has been timely done. Okay. Next section is for non-payment of advance tax. See, in this case, even if you have paid the advance tax lately, but you have paid, there is no non-payment. ऐसा नहीं हुआ है कि आपने पे नहीं किया है, आपने तो पे किया है. So, ये जो दूसरा सेक्शन है, सेक्शन 234B, ये भी आप यहाँ पर भी आपको कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, because you have paid the advance tax of the entire 20,000 rupees, right? Coming to the next section, what is that? Interest for delayed payment of installment. See, according to the provision, on or before 15th of June, how much of the advance tax you should pay? 15%? 15%, right? So 20,000 का 15% कितना होगा? 3,000 rupees, right? 3,000 rupees. So till 15th of June, you have paid 10,000 rupees. So obviously, 10,000 is 50% of your tax, 50% of your advance tax. So इस केस में यहाँ पर मैं साइड में आपको बताती हूँ, इस तक में आपको पे करना था 3,000 rupees. Then the next date is 15th of September 2021. ये कितना है? 45%. So 20,000 का 45% will be how much? 9,000 rupees. Then the next date is 15th December 2021. So this will be 75%. So इसका 75% कितना हो जाएगा? 15,000 rupees. And then
and finally, by 15th of March, how much you have to pay? The entire tax, that is 20,000. So in this case, 15th of June को आपने पे कर दिया 10,000. That means ये वाला satisfy हो गया, right? And 15th of September तक आपको 9,000 in total पे करना था, तो 10,000 तो आपने पहले ही पे कर रखा है. So yes, ये भी आपका पे हो गया. Next, 15th December तक में आपको 15,000 पे करना था, 6,000 एक्स्ट्रा आपको पे करना था, जो कि आपने नहीं किया है, क्योंकि 15th जून के बाद आपका जो नेक्स्ट पेमेंट है वो सीधा 31st मार्च को ही आपने किया है. सो इस केस में आपने ये दोनों इंस्टॉलमेंट्स नहीं दिए हैं. सो इस केस में ये क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स. सो इन दिस केस your interest will be payable, right? First two installments were paid on time, but the rest two installments were not paid in the prescribed time, right? Okay. So ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, so that आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए. नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं इन डिटेल सेक्शन 234A, दैट इज इंटरेस्ट फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न. सो दिस इज, ये यहाँ पर आप ऐसे समझिए, दिस इज योर ईयर एंड, ठीक है? द ईयर इज बीइंग एंडिंग हियर. नाउ योर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग इज हाउ मच? इज 31st July 2022. This is 31st March 2022, and you filed your return on, let's say, 31st September 2022. Okay, you filed your return on which date? 31st September 2022. So in that case, your interest will be levied on, your interest will be chargeable on which amount? It will be chargeable at the rate of 1% per month. जितने भी मंथ्स का आपने डिले किया है, यहाँ पर आपने 2 महीनों का डिले किया है. So in this case 1% into 2 months, 1% per month or part of the month on amount outstanding on due date of return of income filing. So इस दिन तक में 31st जुलाई तक में आप लोगों का जो एडवांस टैक्स है उसका कितना परसेंट आउटस्टैंडिंग है? What percentage of your advance tax is being outstanding on this date, on the date of return filing? Accordingly उस अमाउंट के ऊपर 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा. सो अभी एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं. ड्यू डेट ऑफ रिटर्न क्या है? 31st जुलाई. योर टैक्स पेएबल इज 20,000 rupees. दिस इज योर एडवांस टैक्स पेएबल, एंड यू पेड योर एडवांस टैक्स ऑन 31st August 2021. So your return was filed on 31st December 2021. So in this case, your interest, how much interest will be charged from you? Interest under section 234A will be 20,000. क्योंकि आपका ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले आपने कितना पे किया था? आपने कुछ भी नहीं पे किया था. You did not pay a single penny before the due date of return filing. So you have paid the entire amount after your due date of return, right? So in this case, the interest will be charged as a percentage on this entire amount, right? Now you have to calculate how many months, right? So 20,000 into 1% per month multiplied with ड्यू डेट के बाद कितने महीने हो गए हैं? जुलाई से लेके जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. सो इन टोटल 5 months. 5 months के बाद आपने रिटर्न फाइल किया है. सो इसीलिए उस पूरे 5 महीने पर आपको 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करना है, और वो कितना हो जाएगा? 1,000 rupees. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं हम लोग. ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम इज हाउ मच? इज 31st July 2021. Your tax payable is 20,000 rupees. On 10th April 2021, you paid 5,000 rupees.
You paid 5,000 rupees out of this 20,000. So remaining कितना रहा? 15,000 rupees you have to pay. You have not yet paid. You have to pay remaining 15,000 rupees. And that 15,000 rupees you paid on 10th August 2021. So your due date of return was 31st July, and after 10 days you paid the rest amount. And your return was filed on 31st October 2021. So in this case, interest will be charged on which amount? Interest will always be charged on the amount that you paid after your due date of return. So due date of return के बाद आपने कितना पे किया? 15,000 rupees into 1% and multiplied with how many months? How many months, tell me? आपको रिटर्न फाइल करना था जुलाई में and you filed your return on October. So August, September, October, 3 महीने का. So this will be 15,000 into 3 months into 1% per month. So your total interest chargeable will be 450 rupees. Right? I hope this is clear to you now. Next section. Section 234B. Interest for non-payment of advance tax. Advance tax is payable when it is 10,000 rupees or more. This we have been studying since the last class. Interest under section 234B is payable only when amount paid before 31st March is less than 90% of advance tax. Now you have to remember this, that non-payment of advance tax कब होगा? If you have paid less than 90% of advance tax before 31st March. ये आपका year end है and this is the date of tax payment. So इसके बीच में जितना भी टाइम है, इंटरेस्ट ऑन अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन ईयर एंड. ईयर एंड पर जितना भी आपका अमाउंट आउटस्टैंडिंग था, जितना भी आपने नहीं पे किया है, उस अमाउंट पर 1% के हिसाब से जो टैक्स है वो चार्जेबल होगा. अब चलो आगे देखते हैं. एक एग्जाम्पल छोटा सा फॉर प्रीवियस ईयर 2020-21 के लिए हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे. टैक्स पेबल इज 25,000, जिसमें से कि TDS डिडक्ट हो गया 20,000 एंड सो आपका एडवांस टैक्स पेबल कितना हो जाएगा? 5,000 ओनली. एंड दिस एडवांस टैक्स वाज पेड ऑन 5th April 2019. So small correction is needed. This will not be 19, this will be 21. Okay. So यहाँ पर आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? You don't have to pay any interest as the advance tax payable is less than 10,000. So यहाँ पर तो आपका एडवांस टैक्स ही नहीं बनता है, राइट? सो इसीलिए योर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B विल बी nil. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रीवियस ईयर 2020-21 के लिए योर टैक्स पेएबल इज 25,000 आउट ऑफ विच TDS हैज बीन डिडक्टेड 5,000 रुपीज. सो योर एडवांस टैक्स कितना आपको पे करना पड़ेगा? 20,000 रुपीज. सो 20,000 रुपीज का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब तक देना है आपको? आपको देना है 15th जून तक देना है. 15th जून तक उसका 15% देना है. 15% इज हाउ मच? 3,000 रुपीज. एंड यू पेड योर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन 20th March 2021. 20th March 2021. And on 31st March 2021, you paid again 8,000 rupees. So यहाँ पर हमें चेक करना है कि क्या 234B अट्रैक्ट होगा. 234B में क्या बोल रहा है कि अगर आपका एडवांस टैक्स पेएबल 31st मार्च से पहले लेस देन 90% होगा तभी ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा. नाउ टेल मी 20,000 का 90% कितना है? 18,000 रुपीज. एंड on 31st March 2021 you paid 18,000 rupees. पहले आपने 10,000 दिया था, फिर आपने 8,000 दिया है. सो इस केस में ये सेक्शन अट्रैक्ट ही नहीं होगा, राइट? अट्रैक्ट ही नहीं होगा. और यहाँ पर एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि आपका एडवांस टैक्स पेएबल है 20,000 रुपीज एंड आपने 20th मार्च को आपने पे किया था 5,000 रुपीज. देन अगेन 31st मार्च को आपने पे किया 11,000 रुपीज. सो दोनों मिलाकर आपने कितना पे किया है? 16,000 रुपीज, विच इज ओनली 80% ऑफ योर टोटल एडवांस टैक्स पेएबल. सो इन दैट केस
Section 234B will be attracted, and in this case, how much will be charged? आपका कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है ऑन 31st मार्च? ईयर एंड पर आपका कितना अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग है? दिस अमाउंट 4000 इज आउटस्टैंडिंग, एंड उसके ऊपर 1% पर मंथ के हिसाब से आपका जो टैक्स है वो, आपका जो इंटरेस्ट है वो चार्ज होगा. सो यहाँ पर कितने मंथ्स के लिए करना है? देखो 31st मार्च को आपने ये वाला पे किया था और अगले ही महीने अप्रैल को ही 4th अप्रैल को ही आपने बाकी का जो 4000 है वो पे कर दिया है. सो इस केस में ओनली 1 मंथ का चार्ज होगा. यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि 31st मार्च के बाद तो ये ओनली 4 days का ही डिले हुआ है. सो इन दिस केस जस्ट रिमेंबर दैट अ डिले इज अ डिले, इवन इफ इट इज ऑफ ओनली 1 day और इवन इफ इट इज ऑफ ओनली 30 days, उसका जो इंटरेस्ट है वो उतना ही चार्ज होगा. सो 4000 आउटस्टैंडिंग अमाउंट मल्टीप्लाइड विथ 1% into 1 month, right? So 40 rupees will be charged. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैलकुलेट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A and 234B फॉर प्रीवियस ईयर 2020-21. So in this case, your tax payable is 25,000, TDS 5,000, advance tax payable is 20,000. So in this case, the first installment was paid on 20th March 2021. Okay, 20th March 2021, you paid 8,000 rupees. Then on 15th September 2021, you paid the rest 12,000 rupees. And your due date of return filing is 31st July 2021, and date of when you filed your return is 15th October 2021. So यहाँ पर कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट होगा? दोनों सेक्शंस अट्रैक्ट होंगे यहाँ पर. एक तो है सेक्शन 234A और दूसरा है सेक्शन 234B. ए क्या था? इंटरेस्ट ऑन लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न. तो आपको रिटर्न फाइल करना था 31st जुलाई को, एंड यू फाइल योर रिटर्न ऑन 15th अक्टूबर. सो इन दिस केस किस अमाउंट पर चार्ज होता है? यहाँ पर देखो फिर से, ये जो है ये हमेशा ही आपका जितना आउटस्टैंडिंग है ऑन अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग. तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग इज 31st जुलाई, और तब तक में आपका कितना आउटस्टैंडिंग था? 12,000 पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग था. सो 12,000 इंटू 1% इंटू हाउ मेनी मंथ्स? 3 महीने का डिले हुआ है, सो इंटू 3. तो आपका टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 360 रुपीज. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B. यहाँ पर भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो कितना है? ईयर एंड के बाद आपका 12,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है. उसके ऊपर 1% के हिसाब से मार्च से हम लोग अगर स्टार्ट करेंगे, ये ईयर एंड के बाद से देखा जाता है सेक्शन 234B के लिए. तो ये क्या हो जाएगा? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. सो टोटल आपका मार्च तो नहीं होगा, अक्टूबर भी यहाँ पर काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये हो जाएगा आपका डेट ऑफ टैक्स पेमेंट तक देखा जाता है. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. सो टोटल 6 मंथ्स का यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज होगा. दैट विल बी 12,000 इंटू 6 months into 1%, that is 720 rupees. Okay, section 234A and B complete हो गया. Coming to the next section, that is section 234C. ये section क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन डिलेड इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स. एडवांस टैक्स के ऊपर अगर आपने एडवांस टैक्स का जो इंस्टॉलमेंट है वो पे करने में आपने डिले कर दिया है, तो उस केस में कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा? सो इन दिस केस tax payable is 25,000, TDS 5,000, and your advance tax payable will be 20,000 rupees. So now आपने इंस्टॉलमेंट कब पे किया है? आपको पे करना था कब तक? 15th जून 2020 तक पे करना था. हाउ मच? 3,000. 15th सितंबर 20 तक पे करना था. हाउ मच? 9,000. Then 15th
दिसंबर 20 तक पे करना था 15,000, देन 15th मार्च 21 तक पे करना था आपको पूरा का पूरा 20,000. सो 15 जून तक क्या आपने 3,000 पे कर दिया है? चलो काउंट करते हैं. 15 अप्रैल को यू पेड 1,000, मई में आपने पे किया 1,500. सो यस, ये दोनों मिलाकर कितना हो रहा है? 2,500. तो ये वाला जो है ये 15 जून के अंदर में आपने पे नहीं किया है. नेक्स्ट इज योर 10th सितंबर. सो ये आपने पे नहीं किया है तो यहाँ पर एक डिफॉल्ट हो गया. नेक्स्ट इज व्हाट? 15th सितंबर तक आपको पे करना था टोटल 9,000 रुपीज. तो 15th सितंबर तक आपने कितना पे किया है? 2,500 प्लस 2,000 एंड यू हैव पेड ओनली 4,500. सो यहाँ पर भी ये डिफॉल्ट हो गया, ये आपने पे किया नहीं है. नेक्स्ट है आपका 15 दिसंबर तक आपको 15,000 टोटल पे करना था, राइट? सो आपने कितना पे किया है? 1,000 प्लस 1,500 प्लस 2,000 प्लस 3,000. सो ये कितना हो जाएगा? यू हैव पेड ओनली 7,500 टिल 15th ऑफ दिसंबर. तो यहाँ पर भी एक डिफॉल्ट हो गया. नेक्स्ट क्या है? 15th मार्च 2021 को आपने पे किया 2,500 मोर. सो ये कितना हो गया? सारा मिलाकर यहाँ तक का हो गया है 10,000 रुपीज. 20,000 से आपने ओनली 10,000 ही पे किया है 15th मार्च तक. सो यहाँ पर भी ये एक डिफॉल्ट हो गया. लेकिन बिफोर द ईयर एंड आपने सारा का सारा पे कर दिया है और आपके पास बैलेंस और कुछ नहीं है. आपने सारा का सारा ईयर एंड से पहले सारा का सारा एडवांस टैक्स पे कर दिया है. पे तो कर दिया है लेकिन इंस्टॉलमेंट्स में आपने डीले कर दिया है. तो इसका कैलकुलेशन देखते हैं. 3,000, 9,000, 15,000, 20,000 इतना इतना आपको पे करना था, आपने इतना इतना किया है. तो शॉर्टफॉल जितना भी हो रहा है, जितना भी उसका शॉर्टफॉल हो रहा है, उस केस में 1% इंटरेस्ट 1% पर मंथ के हिसाब से आपको वो पे करना है, राइट? इंटरेस्ट पे करना है. तो यहाँ पर है शॉर्टफॉल 500 रुपीज का. एंड आगे का जो है ये 500 रुपीज आपने कब पे किया है? उसके 3 महीने बाद. After 3 months of this date, you have paid the rest shortfall. So in that case, जितना भी आपका shortfall हुआ था into 3%, that will be 15 rupees your interest. Okay. Next, September में भी आपने default किया था. So your shortfall is 4,500 and this amount you paid on which date? You paid on 15th December, which is again after 3 months. So ये क्या हो जाएगा? 4,500 जितना आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है and again multiplied with 1% into 3 months. That will be 135 rupees. Next, your shortfall is rupees 7,500. So in this case, you paid this 7,500 after 3 months. So यहाँ पर भी ये हो जाएगा 7,500 into 3%, क्योंकि 1% इंटरेस्ट रेट इंटू 3 months आपका अमाउंट आ गया. एंड फाइनली 15th मार्च के बाद 31st मार्च जो 15 डेज है, 15 डेज को हम 1 month मान लेंगे यहाँ पर. और यहाँ पर भी आपको 1% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट. सो ये हो जाएगा 100 रुपीज, राइट? आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू. चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं प्रीवियस ईयर 2020-21 के लिए. सो इस क्वेश्चन में आपका जो टैक्स पेएबल है दैट इज 40,000, देन योर TDS हैज बीन डिडक्टेड एज 10,000 रुपीज एंड योर एडवांस टैक्स पेएबल इज 30,000 रुपीज. नाउ you have paid 10,000, you have paid 2,000 on 10th June 2020 and ये सारे dates आपको दिए हुए हैं. Due date of return है 31st July and you filed your return on which date? 16th August 2021. So यहाँ पर कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट होगा? यहाँ पर 2 सेक्शन तो अट्रैक्ट होगा, वो दिख ही रहा है हम लोगों को कि पहला तो है आपका सेक्शन 234A
जो कि है आपका ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग का, और दूसरा सेक्शन है 234B जो कि है आपका नॉन पेमेंट का, और तीसरा क्या है आपका, तीसरा है आपका जो इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं पे करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 234A के अंडर में कितना % आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। 5000 है आपका, आपका ड्यू डेट के बाद आपका कितना आउटस्टैंडिंग है। ड्यू डेट है आपका 31 जुलाई, और 31 जुलाई तक आपने कितना अमाउंट नहीं पे किया है, 5000 नहीं पे किया है। सो 5000 इंटू 1%, 1% इसलिए क्योंकि एक महीने के अंदर अंदर ही उन्होंने अपना रिटर्न फाइल कर दिया है, राइट। नेक्स्ट इज 234B। 234B में ये जो सेक्शन है यहाँ पर क्या चार्ज होता है, यहाँ पर ईयर एंड से लेके आपने जिस दिन टैक्स पे किया वो कितने महीने हैं वो आपको काउंट करना है। सो 234B के हिसाब से आपको 31 मार्च 2021 तक 90% पे कर लेना चाहिए था, लेकिन आपने कितना पे किया है यहाँ पर, 2 + 3 5, 3 8,000 plus 5,000 again 13,000, then 7,000. So you have paid 20,000 out of 30,000. So 30,000 कितना हो जाएगा? It is only 66%. Okay. So 90% से कम ही पे किया है आपने. So यहाँ पर आपका जो यहाँ पर 30th मार्च को भी काउंट करेंगे हम. So 20,000 plus 5,000 ये हो जाएगा आपका 83%। तो आपने सिर्फ 83% ही पे किया है टिल द ईयर एंड। 31 मार्च 2021 तक आपने सिर्फ 83% ही पे किया है, और आपका कितना बचा है 5,000 रुपीज। सो 5,000 रुपीज इंटू 1% इंटू हाउ मेनी मंथ्स, कितने मंथ्स का डिले हुआ आपका, यहाँ पर 5 मंथ्स का डिले हुआ। 31 मार्च को आपको पे करना चाहिए था, लेकिन आपने उसको अगस्त में पे किया, सो 5 मंथ्स का डिले। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। तो ड्यू डेट है आपका 15 जून तक आपको कितना पे करना था, 15%, देन 45%, देन 75%, देन 100%। तो ये इतना आपको पे करना चाहिए था, लेकिन आपने इतना पे किया। शॉर्टफॉल कितना हो रहा है, शॉर्टफॉल जितना भी हो रहा है उस पर आपको इंटरेस्ट देना है। तो ये आपको 15 जून तक पे करना था, लेकिन ये आपने पे कब किया, ये आपने पे किया 20 सितंबर को। तो ये कितने महीने हो जाएंगे, 3 मंथ्स हो जाएगा। सो शॉर्टफॉल दैट मीन्स जितना भी अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग है दैट मच इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स। देन अगेन यहाँ पर भी 3 महीने का डिले हो रहा है, अगेन यहाँ पर भी 3 मंथ्स का डिले हो रहा है, एंड लास्टली आपका 1 मंथ का डिले हो रहा है। सो अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट योर इंटरेस्ट अमाउंट्स, राइट। सो आपको टोटल 805 रुपीज का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। आज का क्लास यहीं तक रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बुक में जो भी इलस्ट्रेशन दिया है उसको सॉल्व करेंगे, और या फिर आप खुद भी उसको घर पे सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है, कोई क्वेश्चन डाउट रह रहा है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, सो दैट आई गेट टू नो विच क्वेश्चंस आर योर डाउट्स and I'll solve those questions in the next class. If you like this video, then please hit the like button, share this video with your CA Inter friends, and subscribe to my channel, The Witty Turtle. And if you have not joined my Telegram group, then you can get the link from the description box, or you can simply type The Witty Turtle on your Telegram and can find my group.